We'll continue our topic, and last topic, as we have learned, VSEPR principle. They do ask us certain question on basis of VSEPR principle, shapes and the structures of certain molecule. They do ask, explain the shape of methane, explain the shape of ammonia, explain the H2O. Let me explain you one by one each one of them. हर एक मैं आपको समझाता हूं कौन कौन से शेप समझने वाले, मीथेन, अमोनिया एंड H2O. पहले हम पढ़ाई करेंगे शेप ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR प्रिंसिपल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन. सी होता क्या है इन मीथेन, as we know formula is CH4. It has central atom in the form of carbon and the atomic number of carbon is 6, so it has configuration of 1s2, 2s2, 2p2, which is like this: 1s2, 2s2, 2p2. This configuration is known as ground state electronic configuration. It is known as ground state electronic configuration. Now from here, from 2s2, one of the electron gets excited and it enters into 2p orbital, and it does enter into which orbital? 2p orbital, and we get excited state configuration which is 1s2, 2s1, 2p3, and it is like this: 2s1, 2p3, and this shape is known as, this configuration is known as excited state electronic configuration. Correct or not? After that, these four orbitals, as we had learned earlier in last semester, they undergo through sp3 hybridization, and when they undergo sp3 hybridization, carbon is in center and four orbitals which you get will be like this in tetrahedral arrangement, and those four electrons which are unpaired, they come over here. Correct? and उसके बाद चार हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपनी 1s ऑर्बिटल के साथ आएंगे और यहां पे शेयर करेंगे. And they do bonding. What they do bonding over here. Correct? Since all four electron pair are bonding electron pair, और फोर ऑफ देम, चारों की चारों, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, तो इनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो चारों और इक्वल होता है. कैसा होगा? सिंस इक्वल रिपल्सन, सो दे विल अरेंज इन 3 डायमेंशन इन सच ए वे कि चारों के बीच में इक्वल एंगल बनेगा. चारों के बीच में कैसा बनेगा एंगल? इक्वल एंगल. एंड अगर वो एंगल हम डिटरमाइन करते हैं तो दिस एंगल इज ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, एंड ये जो शेप बनता है ये वाला, ये शेप टेट्राहेड्रल बनता है. व्हाट डू वी हैव इज टेट्राहेड्रल. ये किसकी हमने बात की? मीथेन की. बराबर है. इज देयर एनी डाउट ओवर हियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? विल कंटिन्यू फर्दर. ये था मीथेन का शेप. सेकेंड हम देखने वाले शेप ऑफ अमोनिया बेस्ड ऑन VSEPR. Ammonia has molecular formula NH3
and since central atom is nitrogen, which has atomic number of 7, so its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3, and it's like this. One s2, 2s2, 2p3. Here, in the same electronic configuration, which is ground state, nitrogen atom undergo through sp3 hybridization. It undergoes which hybridization? sp3. Nitrogen being in center, 4 new orbitals will be formed, sp3 hybrid orbitals. Correct? And they are supposed to be arranged in tetrahedral shape like this. Correct or not? In that tetrahedral shape, 4, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, there are 5 electrons over here. How many electrons are there? 5. This 5 electron will arrange in this orbital like this manner. 1, 2, 3, 4 and 5. So this particular part becomes non-bonding pair of electron. Is not going to take any part in the bonding because वहां पे already pair complete हो चुकी है. यहां पे बाकी 3 पे 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे एंड वहां पे बॉन्ड बनाएंगे. तो you can see over here there are 3 bonding pairs of electrons, these 3, and this one is non-bonding या तो lone pair of electron. ये lone pair है. करेक्ट है ना? सो सिंस अभी रिपल्सन थोड़ा अलग होगा. सी अगर टेट्राहेड्रल है तो दिस angle should have been 109. It should have been what? This angle should have been 109.28 degree. Am I right? It is supposed to be because tetrahedral है. बट होता क्या है, ये 109.28 नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि यहां पे जो रिपल्सन हो रहा है वो कैसा होगा? नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग का रिपल्सन. और यहां पे रिपल्सन हो रहा है कैसा होगा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग में. एंड VSEPR थियरी हमको बताती है कि नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग रिपल्सन इज ग्रेटर देन द बॉन्डिंग बॉन्डिंग. मतलब ये भाई साहब का जो ये रिपल्सन है, इट इज मच हायर देन दिस रिपल्सन. तो दैट्स व्हाई दिस 2 ऑर्बिटल्स वो दे गेट स्क्वीज्ड. उसका एंगल छोटा बन जाएगा. जो ये होना चाहिए था 109.28 उससे कम हो जाएगा, वो नहीं रहेगा और एक्चुअली आपको मिलेगा 107. कितना मिलने वाला है? ये जो एंगल है इट विल बिकम 107. एंड नॉर्मली याद रखना, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, जो एंगल फाइंड करते हैं वो हमेशा बॉन्डिंग पेयर के बीच में ही फाइंड करते हैं, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में नहीं करते. इज इट फाइन? तो इसका एंगल कितना है? 107. 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछेंगे. वाई मीथेन एंड अमोनिया, दो बोथ ऑफ देम दे अंडरगो थ्रू hybridization. One has the angle of sp 107 and second has the angle of 109.28. Are you following this? Then we need to explain. ये डायग्राम ड्रॉ करके दोनों के दोनों समझाने. समझा पाओगे ना आप? करेक्ट और नॉट? थर्ड वन विच वी नीड टू सी, कौन सा रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ, या तो शेप, या तो स्ट्रक्चर, या तो शेप ऑफ H2 on the basis of VSEPR. On the basis of VSEPR principle. Let us understand that. In H2O, central molecule is oxygen atom. Oxygen has atomic number of 8. So 1s2, 2s2, 2p4.
and it is arrangement like this: 2s2 2p4 is like this, that is our 2p4. If we see the structure of water, oxygen is in center. There are 4 hybridized orbital, 1 2 3 4, करेक्ट और नॉट? इसका भी शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बाद में देखते, बट इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन डाल देते। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? माफ करना, ये थोड़ा गलत हो गया, ये वाला ऐसा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट और नॉट? ये दोनों बॉन्डिंग बन जाते, सॉरी नॉन बॉन्डिंग। यहां पे पेयर बना दी, यहां पे भी पेयर बना दी। ये पेयर थोड़ी नजदीक हो गई है, काफी नजदीक हो गई है, थोड़ा दूर कर देता हूं। ठीक है, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे दो जगह पे 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं और बॉन्ड बनाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, बट याद रखना है ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे रिपल्सन होगा, कैसा होगा? नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। यहां पे रिपल्सन होगा नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और यहां पे रिपल्सन होगा बॉन्डिंग बॉन्डिंग, तीनों आ रहे हैं। तो मैक्सिमम रिपल्सन कहां पे देखने को मिलेगा? यहां पे, उसके बाद थोड़ा कम यहां पे, और सबसे कम यहां पे। तो ये स्क्वीज हो जाते हैं। इसीलिए जब हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे H, यहां पे H, और ये 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एंगल जो होगा स्क्वीज होके बनेगा 104 डिग्री 30 मिनट्स। कई बार ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये कई बार ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसको ऐसे छोटी सी ऑर्बिटल ड्रॉ करके वहां पे दिखाते हैं। सेम वे अमोनिया में करते हैं। अमोनिया में मैंने यहां पे, ये नाइट्रोजन है, ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहां पे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओ, ये एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। या तो फिर ऐसे दिखाते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग को ऐसे ऑर्बिटल में दिखाओ, बाकी तीनों बॉन्डिंग है। दे में आस्क आपको, ओके, तीनों भी पूछ सकते हैं 4 मार्क में। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ ऑल दिस 3 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR। ड्रॉ करके, या तो कंपेयर करने के भी पूछेंगे, करेक्ट और नॉट? आप अपनी टेक्स्ट बुक में से रीड कीजिए, तब तक मैं इसको